In this video, we are going to discuss calculative concept of scalar triple product. Now, as you all know how to calculate STP, so I said we use determinant. In the first row, you write first vector. In second row, you write second vector. In third row, you write third vector. Okay. So with this, let's start with question number 1. If a bar is equal to 2I cap plus j cap plus 3k cap, b bar is equal to minus I cap plus 2j cap plus k cap, and C bar is equal to 3I cap plus j cap plus 2k cap. Then find box A bar, B bar, C bar. Find box A bar, B bar, C bar. Okay, it's a simple sum here. Now in this sum, since they want us to find a box product, what we do, we use a determinant. Okay, in the first row, we write first vector. So what is the entry of the first vector? 2, 1, 3. Next is minus 1, 2, 1. Next is 3, 1, 2. Now let's open the determinant. So what we get? 2 bracket, 2 2s are 4, minus 1 bracket, minus 2, minus 3, plus 3 bracket, minus 1, minus 3 2s are 6. So what we get here? 2 into 3, minus 1 into minus 5, plus 3 into minus 7. So we got 3 2s are 6 plus 5 minus 21. It is minus 10. Okay. So total discussion would be based on how to calculate STP with the help of determinant, and for that we need 3 vectors. Okay, और वो 3 वेक्टर वो बदलते जाएंगे. ठीक है. So let's take the second question. They say find the volume of tetrahedron with 1, 1, 3, 4, 3, 2, 5, 2, 7 and 6, 4, 7 as vertices. ठीक है. चलो, now what they want us to find? The volume of tetrahedron. अगर याद है तो volume of tetrahedron क्या था? It was 1/6 of box product बराबर, लेकिन किसका box product? Of coterminous edges. अब हमको edges दिया है कि vertices दिया है, तो उन्होंने vertices दिया है. So what we need to do? Convert vertices into edges बराबर, and then we use the above formula. Fine. So let's start in the solution. Solution में सबसे पहले we'll name the points. Okay, let us say A is 1, 1, 3. तो यहाँ से हम A bar बना देंगे, which is I cap plus J cap plus 3K cap. Okay, next is B is 4, 3, 2. So B bar is equal to what? 4I cap plus 3J cap plus 2K cap. Next is C. What is the coordinate given? 5 2 7. 5 2 7. तो C bar का वैल्यू हो जाएगा 5I cap plus 2J cap plus 7K cap बराबर. एंड D is 6 4 7. तो यहाँ से हम D bar निकालेंगे. What is D bar? 6I cap plus 4J cap plus 7K cap. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग 3 वेक्टर्स निकालते हैं. ओके, सो लेट अस से हम लोग पहले फाइंड करेंगे AB bar. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AB bar? B bar माइनस A bar. नीचे से ऊपर माइनस करेगा तो व्हाट आई गेट? 3I cap plus 2J cap minus K cap. नेक्स्ट इज AC bar. व्हाट इज द फॉर्मूला? C bar माइनस A bar. तो C में से A माइनस करेंगे, C में से A माइनस करेंगे तो व्हाट आई गेट हियर? आई गेट 4I cap plus J cap plus 4K cap. ठीक है. एंड फाइनली वी गो फॉर AD bar. व्हाट इज AD bar? D bar minus A bar. So do we have D bar? Yes, minus A bar. So if I do the subtraction, what I get? 5I cap plus 3J cap और यहाँ पे आएगा प्लस 4K cap. ठीक है. नाउ कैन आई से द वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला है. ठीक है. टेट्राहेड्रॉन is equal to, what is the formula? 1/6 box AB bar, AC bar and AD bar. ठीक है. हाउ डू वी कैलकुलेट बॉक्स प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट बराबर, तो एंट्री करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, विच इज़ द फर्स्ट वेक्टर? 3 2 -1. नेक्स्ट इज सेकेंड वेक्टर 4 1 4. नेक्स्ट इज 5 3 4. ओके, तो लेट्स ओपन द डिटर्मिनेंट नाउ. सो 1/6, ध्यान रखना कर्ल ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट 4 - 12 -2 ब्रैकेट 4 4s are 16 minus 5 4s are 20 minus 1 bracket 12 - 5. ठीक है. So with this what we get here? 1/6 curl bracket 3 bracket -8 minus 2 bracket -4 minus 1 bracket 7. ठीक है. So we got 1/6 curl bracket 8 3s are 24. यहाँ पे आ जाएगा +8 -7 which is +1.
आंसर -23/6 बराबर। लेकिन एक सेकेंड, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। ओके, तो कैन आई से सिंस वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, okay, and therefore can I say the volume is equal to 23/6 cubic units. Okay, so it was not nothing but vertices को sides में convert करना था, ठीक है। चलो, okay, let's go to the third sum. Now in the third sum they say the volume of parallelepiped whose edges are represented by -12 I cap plus k cap, 2 I cap plus j cap minus, एक सेकेंड, the next is 3 j cap minus k cap and 2 I cap plus j cap minus 15 k cap is 546, then find lambda, ठीक है। चलो, in this sum if you see they have given us the volume of parallelepiped, कितना दिया है 546 cubic units, and what they want us to find lambda, ठीक है। अब यहाँ पे if you can just recall whenever in a sum वॉल्यूम अगर दिया होगा, ओके, व्हेन द वॉल्यूम इज गिवन वी राइट प्लस और माइनस, ओके। नाउ इसका रीज़न हमने कॉन्सेप्चुअली किया था, ओके, इज सी ये जो प्लस माइनस है वो वॉल्यूम का नेगेटिव नहीं है, बट व्हेन यू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। सो वो जो प्लस माइनस है वो डिटर्मिनेंट का प्लस माइनस है एंड नॉट वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी वॉल्यूम दिया है वी राइट प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पे लैम्बडा का कितना आंसर आएगा 2, रेस्ट ऑल इज़ वेरी सिंपल। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट अस नेम द वेक्टर्स। सोल्यूशन ए बार इज इक्वल टू -12 आई कैप प्लस के कैप बराबर, बी बार इज इक्वल टू 3 जे कैप माइनस के कैप, सी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 15 के कैप, ठीक है। चलो अब क्या बोलेंगे, सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ parallelepiped is equal to, what is the formula for volume of parallelepiped, box product of co-terminus edges, और सबने क्लियरली बोला है ए बार बी बार सी बार एजेस है बराबर, ओके। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम का फॉर्म वैल्यू गिवन 546, तो यहाँ पे आएगा 546, लेकिन एक सेकेंड, व्हाट वी राइट हियर प्लस और माइनस, तो यहाँ पे आप स्टार कर देना प्लस और माइनस में, ठीक है। इज इक्वल टू, हाउ डू वी कैलकुलेट STP यूजिंग डिटर्मिनेंट। चलो फर्स्ट रो में एंट्री बताओ क्या आएगा, -12, इज इट नॉट 0 लैम्बडा, ओके, यहाँ पे आई जे और के, जे नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट रो में क्या एंट्री आएगा 0 3 -1, दैट इज सेकेंड वेक्टर 0 3 -1, और लास्ट रो में क्या आएगा 2 1 -15, तो यहाँ पे आएगा 2 1 -15, समझा क्या क्या पे। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई टू गेट लैम्बडा। सो 546 इज इक्वल टू -12 ब्रैकेट -15 4 3 45, यहाँ पे आएगा +1 माइनस नेक्स्ट टर्म तो 0 आएगा, चलो तो वो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, प्लस लैम्बडा टाइम 0 -6, सो व्हाट वी गेट प्लस और माइनस 546 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -12 इंटू -44 -6 लैम्बडा, ठीक है। सो यहाँ पे 12 इंटू 44, ओके, सो व्हाट वी डू हियर इज 44 12 are 8 8 0 4 4, okay, so what do you get 8 to 528, okay, so here I get 528 minus 6 lambda, ठीक है। चलो अब इसको अलग करते हैं, तो what I get 546 minus 528 is equal to 6 lambda, okay, I would say minus 6 lambda, 6 lambda को एडजस्ट करते हैं, so 546 is equal to 528 minus 6 lambda और minus 546 is equal to 528 minus 6 lambda। चलो 6 लैम्बडा को एडजस्ट करते हैं, तो व्हाट इज 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 528 माइनस 546, अगर आप समझे तो -18 आएगा, सो व्हाट इज लैम्बडा इज इक्वल टू -3 बराबर। ऑन दिस साइड 6 लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 528 प्लस 546, इफ आई एडेड 8 और 6 14 1074, ठीक है। सो व्हाट इज लैम्बडा का वैल्यू 1074/6, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से जाएगा क्या, 6 1 6 47 42 54
8 ज़ा, ठीक है. सो 178 इज द आंसर फॉर लैम्बडा. आर यू गेटिंग इट? सो ये दो वैल्यूज अपने को मिला. सो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था. इट वॉज जस्ट बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फार्मूला. द ओनली थिंग इज जब भी वॉल्यूम दिया आप क्या यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस, ठीक है. सो विल गेट टू वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ हियर इन दिस सम they say show that a bar is equal to I cap plus 2j cap minus k cap, b bar is equal to 3I cap plus 2j cap plus 7k cap, and c bar is equal to 5I cap plus 6j cap plus 5k cap are coplanar vectors. चलो बहुत ही सिंपल चीज़ है. ओके हमको शो क्या करना है, कोप्लेनर वेक्टर्स. और जैसा बोला कोप्लेनर वेक्टर्स, आपके दिमाग में क्या आएगा, बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो बस इसमें कुछ नहीं, अपने को बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका आंसर अपने को 0 आएगा. सो कैन आई से कंसीडर बॉक्स ए बार, बी बार एंड सी बार. चलो डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में एंट्री क्या आएगा, इज नॉट, इट वुड बी 1 2 -1. नेक्स्ट रो में 3 2 7. नेक्स्ट रो में 5 6 5. चलो इसको ओपन करते हैं. व्हाट आई गेट, 1 ब्रैकेट 5 2 ज़ा 10 -42 -2 ब्रैकेट 5 3 ज़ा 15 -35 प्लस ऑफ -1 ब्रैकेट 6 3 ज़ा 18 5 2 ज़ा 10, ठीक है. सो व्हाट आई गेट हियर, 40 10 गया तो यहाँ पे आएगा -32 बराबर. व्हाट आई गेट हियर, हियर इट इज़ -20 तो यहाँ पे आएगा +40. And here I get -8, and if you see the answer is 0. So can I say since box A bar, B bar, C bar is equal to 0 implies A bar, B bar and C bar are coplanar vectors. Okay. Now ये समको आप लाइटली मत लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, फॉर 2 मार्क्स. सो कोप्लेनर बोला तो बॉक्स प्रोडक्ट 0. खाली ध्यान क्या रखना है, वर्टाइसिस दिया है कि वेक्टर्स दिया है, ठीक है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Now in this question they say find the value of lambda such that the vectors 2I cap plus minus 4j cap plus 5k cap, I cap minus lambda j cap plus k cap, and 3I cap plus 2j cap minus 5k cap आर कोप्लेनर. प्रीवियस सब में चेक करना था, यहाँ पे वो लोग ने दे दिया है, ठीक है. सो सिंस दे हैव सेड दे आर कोप्लेनर, दिमाग में क्या आया, एज आई सेड दिमाग में आएगा बॉक्स इज इक्वल टू 0, ये थॉट आता है, ठीक है. सो लेट अस फर्स्ट नेम द वेक्टर्स सोल्यूशन में. ओके आई टेक ए बार इज इक्वल टू क्या, 2I कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप. बी बार इज इक्वल टू क्या, I कैप माइनस लैम्बडा j कैप प्लस k कैप. C bar इज इक्वल टू क्या, 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है. नाउ व्हाट आई से, सिंस A बार, B बार एंड C बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स. ओके और जैसा बोला कोप्लेनर वेक्टर्स, कैन आई से देयरफॉर उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0. एंड नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. चलो जरा एंट्री बताओ. फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड रो सेकेंड वेक्टर और थर्ड रो थर्ड वेक्टर, ठीक है. -5 साइन का ध्यान रखना, ठीक है. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट 5 लैम्बडा -2 प्लस 4 बिकॉज बीच में माइनस आता है, ठीक है. सो -5 -3 प्लस 5 ब्रैकेट 2 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 10 लैम्बडा -4, यहाँ पे आ जाएगा -8 8 4 ज़ा 32 तो यहाँ पे आएगा -32. यहाँ पे ओपन किया तो 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 लैम्बडा इज इक्वल टू 0. सो व्हाट आई गेट, 25 लैम्बडा, ठीक है. नाउ व्हाट आई गेट हियर, आई गेट हियर -4 प्लस 10 दैट इज +6. इसमें से 6 क्या तो 26 बचेगा, बराबर ना. सो -26, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 26/25. ओके एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा हियर. इज दैट क्लियर, बराबर. सो कोप्लेनर दे दिया है, उससे हमने लैम्बडा का वैल्यू निकाल दिया. Fine. Chalo, let's move to the next sum. Now, in the next sum, they'll be talking about now question number 6. Prove that A bracket -1 4 -3, B bracket 3 2 -5, C bracket -3 8 -5 and D bracket -3 2 1 are co
प्लेनर पॉइंट्स, बराबर। चलो, अगर आपने इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ा है तो यहाँ पे क्या कीवर्ड है, कोप्लेनर पॉइंट्स। याद करो, कोप्लेनर पॉइंट्स बोला है। ओके, सो द फर्स्ट थॉट इज गेट 3 वेक्टर्स। ओके, और कोई भी 3 वेक्टर नहीं, विथ 1 पॉइंट कॉमन, ये आपका पहला थॉट होना चाहिए, ठीक है। ओके, और एक बार कॉमन पॉइंट आ गया, सो नाउ आई कैन गो फॉर बॉक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द थॉट विच कम्स इन माई माइंड व्हेन आई से कोप्लेनर पॉइंट्स। सो एक काम करते हैं, सबके पहले सबका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं सोल्यूशन में। ओके, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए बार, अगर आप ए बार दिख रहे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बार, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। What is the value of C bar? It is minus 3i cap plus 8j cap minus 5k cap. And what is the value of D bar? It is minus 3i cap plus 2j cap plus k cap. चलो ठीक है, सो ए बी सी डी रेडी हो गया। अब कितने वेक्टर बनाने हैं अपने को, 3 वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद ए बी बार। व्हाट इज ए बी बार, बी बार माइनस ए बार। चलो नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, 4i कैप माइनस 2j कैप, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 2k कैप, ठीक है। आप डायरेक्ट मत करना, आप पूरा सॉल्व करना, ठीक है। ए सी बार इज व्हाट, सी बार माइनस ए बार, वापस नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, सी में से ए माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। एंड फाइनली लेट्स गो फॉर ए डी बार। व्हाट इज ए डी बार, डी बार माइनस ए बार। चलो डी में से ए को माइनस करते हैं, सो नीचे से अगर ऊपर माइनस किया तो ये -2, यहाँ पे -2 बिकॉज ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस होगा इसलिए 4k, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर इज -2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना माइनस है, ठीक है। चलो नाउ व्हाट आई से कंसीडर, अब उनका बॉक्स प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार। चलो ठीक है, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट बॉक्स प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट बराबर फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर। So what is the first vector, 4 -2 -2, next vector -2 4 -2, next vector -2 -2 4, ठीक है। Now since the values are small हम लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं, अदरवाइज आप कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आएगा माइनस, ध्यान रखना माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट 4 2 ज़ा -8 माइनस ऑफ, इसको जब मैं प्रोडक्ट करेगा तो आई गेट +4, यहाँ पे आएगा 4, साइन बदलेगा नहीं, ठीक है। प्लस ऑफ -2 ब्रैकेट -2 इंटू -2 4 माइनस ऑफ 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये माइनस होगा तो यहाँ पे +8। प्लीज़ ध्यान रखना, ये बीच का साइन हमेशा गड़बड़ होता है, ये वाला, ठीक है। सो ये साइन का आपको ध्यान रखना है। सो विद दिस लेट अस कैलकुलेट फर्दर, 4 ब्रैकेट 12, यहाँ पे आएगा +2 ब्रैकेट -12, यहाँ पे आएगा -2 ब्रैकेट 12, ठीक है। तो 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे आएगा -24 एंड यू गॉट 0। सो नाउ बॉक्स प्रोडक्ट 0 मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बार, ए सी बार एंड ए डी बार आर को प्लेनर वेक्टर्स। ओके, नाउ यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन है, तो सिंस ए इज कॉमन पॉइंट वी कैन से दैट A, B, C and D are co-planar points, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझना पॉइंट्स और वेक्टर्स में, ठीक है। सो अभी तक जितने भी सम किए थे, ये लेवल के सम आपको थियरी में और सीईटी में आते हैं। ओके, सो इट लुक्स वेरी इजी, ओके, एंड इट इज़ इनफैक्ट वेरी इजी। आपको खाली फॉर्मूला और प्रॉपर कॉन्सेप्ट डालना है। ध्यान क्या रखना है, अगर पॉइंट्स दिया तो वेक्टर बनाना है, ठीक है। अब आगे के जो सम्स है वो यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, खाली थोड़े बहुत ट्विस्ट डाले रहेंगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ O इज ओरिजिन, कॉमा A ब्रैकेट 1 2 3, B bracket 2 3 4 and P bracket x y z are coplanar, then show that x minus 2y plus z is equal to 0, ठीक है। नाउ देखो एसटीपी का बेस्ट पार्ट क्या है, आपने कौन सा कीवर्ड देखा, कोप्लेनर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सब बाद में देखने का, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड से स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप एन आई ऑन द कॉन्सेप्ट, मतलब टेक्निकल वर्ड कीवर्ड, दैट इज कोप्लेनर। अब कोप्लेनर क्या, वेक्टर्स की पॉइंट्स, तो उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी एंड पी, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू
वेक्टर्स और वेक्टर्स का फिर बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे एंड दैट बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0. लेट्स सी अपने को क्या मिलता है. ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ओके लेट अस कन्वर्ट ओरिजिन तो 0 0 0 नो प्रॉब्लम. 0 बार ए का वैल्यू क्या है 1 2 3. तो यहाँ से हम ए बार बनाएंगे. ए बार इज़ व्हाट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. चलो बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4 बराबर. तो यहाँ पे आएगा बी बार इज इक्वल टू व्हाट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप. ओके और पी का वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड. तो यहाँ से आपका बन जाएगा पी बार विच इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. चलो ठीक है, अब मुझे इसमें से कितने फैक्टर बनाने हैं 3 वेक्टर बनाने हैं. ओके तो कौन सा पॉइंट कॉमन लेंगे. कॉमन सेंस आई कैन टेक ए ओ एज कॉमन पॉइंट. तो हम लोग ओ ए बार बनाते हैं, ओ बी बार बनाते हैं और ओ पी बार बनाते हैं. ओके बट बाय द वे व्हाट इज ओ ए बार ए बार, ओ बी बार बी बार एंड ओ पी बार पी बार. ठीक है, तो ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. ठीक है, सो नाउ कैन आई से सिंस ओ ए बी पी आर कोप्लेनर पॉइंट्स और कोप्लेनर पॉइंट से तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज योर ओ ए बार ओ बी बार एंड ओ पी बार आर व्हाट कोप्लेनर वेक्टर्स. और एक बार कोप्लेनर वेक्टर्स आ गया तो हम लोग क्या करेंगे उनका बॉक्स प्रोडक्ट को 0 लेंगे. सो ओ ए ओ बी ओ पी का जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0. ठीक है, सो लेट्स एंटर द डिटर्मिनेंट में वैल्यू. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर 1 2 3, नेक्स्ट वेक्टर 2 3 4, नेक्स्ट वेक्टर एक्स वाई जेड. सो अगर आप समझ रहे हो तो एमसीक्यू में अगर ये सब आता है तो आपका पहला स्टेप सीधा यही रहेगा इजंट इट, बिकॉज आपको दिख रहा है ओ ए ओ बी और ओ पी का वैल्यू. ठीक है, सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 ब्रैकेट 3z माइनस 4y माइनस 2 ब्रैकेट 2z माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0. Let's open the bracket. What I get? Therefore 3z minus 4y minus 4z plus 8x plus 6y minus 9x is equal to 0. ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट नाउ. x का एक ही वैल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, y का माइनस 4y प्लस 6z मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2y. ओके और z का 3z माइनस दिस तो माइनस z इक्वल टू 0. लेट्स चेंज द साइन. व्हाट आई गेट x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0. और बाय द वे यही तो प्रूव करना था अपने को. आई होप यू गॉट एन आइडिया. मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ठीक है, कीवर्ड ध्यान रखने का. अप्लाई द फॉर्मूला, आंसर रेडी. आर यू गेटिंग दिस? चलो now let's to move to question number 8. Now in this question they say if u bar is equal to I cap minus 2j cap plus k cap, v bar is equal to 3i cap plus k cap and w bar is equal to j cap minus k cap. चलो 3 वेक्टर दिए and then say then find box u bar plus w bar. Okay, u बार क्रॉस वी बार क्रॉस w बार. ठीक है, इनफैक्ट ये लोग ने क्वेश्चन में ना ऐसा पूछा है u बार w बार दिस ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट. आई राइट डिफरेंटली, वापस लिखता हूँ. ओके देन फाइंड क्या लिखना है u बार प्लस w बार डॉट ब्रैकेट u बार क्रॉस v बार क्रॉस w बार. ठीक है, अब ये सब पहली बार देख कर ना मैं कंफ्यूज हो गया था कि इनको चाहिए क्या. बट अगर इसको आपको ध्यान से देख रहे हैं तो डू यू सी दिस एज, ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है. ठीक है, ये आपका सेकंड वेक्टर है. क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है कि नहीं, और ये आपका थर्ड वेक्टर है. तो अगर मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है पता है यहाँ पे 1 डॉट 2 क्रॉस 3 ऐसा कुछ दिख रहा है आपको. और ये 1 2 3 बाय द वे वेक्टर के नंबर्स है. ठीक है, और जैसा मैंने डॉट और क्रॉस देखा मतलब इज इट नॉट ये STP का ही तो बात हो रहा है. ओके एंड हाउ डू वी कैलकुलेट STP यूजिंग डिटर्मिनेंट. बट उसके लिए वेक्टर्स तो निकालने पड़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन. क्या करना है, तीनों वेक्टर को इंडिविजुअली फाइंड करो और उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो. आर यू गेटिंग इट? ओके सो लेट्स स्टार्ट विद u प्लस डब्ल्यू. डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ u बार प्लस w बार. चलो दोनों को ऐड करो. u और w को ऐड करेंगे तो i तो है नहीं, j को ऐड किया तो माइनस j और ये k कट हो जाएगा. सो इज नॉट u बार प्लस w बार इज i माइनस j कैप. नेक्स्ट कौन सा वेक्टर निकालना है, u बार क्रॉस v बार. चलो एक सेकेंड, जस्ट गो टू क्रॉस प्रोडक्ट एंड टेल मी हाउ डू वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट. अगेन यूजिंग डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो, फर्स्ट वेक्टर नहीं, फर्स्ट रो i j k क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर मतलब 1 माइनस 2 1 और नेक्स्ट रो में v बार 3 0 1. लेट्स ओपन द डिटर्मिनेंट. व्हाट आई गेट, आई कैप ब्रैकेट
-2 -0 बराबर माइनस जे कैप ब्रैकेट 1 -3 प्लस के कैप ब्रैकेट इज नॉट 0, 3 2 ज़ा 6 और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई गेट -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यहाँ पे आएगा प्लस 6 के कैप, ये आपका यू क्रॉस भी हो गया। नाउ यू क्रॉस डब्ल्यू निकालना है, ठीक है। तो लेट अस सॉरी वी क्रॉस डब्ल्यू निकालना है, सॉरी, ठीक है। सो लेट अस फाइंड वी क्रॉस डब्ल्यू। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, अगेन डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में क्या आई जे के बराबर ना, नेक्स्ट रो में क्या डालेंगे वेक्टर्स, ओके। तो वी का वैल्यू क्या दिया है, वी का वैल्यू दिया है 0 1 -1 बराबर ना, वी इज़ 0 1, एक मिनट वी नहीं वो डब्ल्यू था, सॉरी, ओके। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, अगर आप देख रहे तो वी इज़ 301, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 301 और वी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 0 1 -1। चलो ओपन करो आई के ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 0 -1 माइनस जे के ब्रैकेट इज़ नॉट -3 -0 प्लस के ब्रैकेट इज़ नॉट 3 -0। सो व्हाट आई इवेंचुअली गेट, आई गेट माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ पे आपके तीनों वेक्टर रेडी हो गए। तो अब इसको उठा के हम लोग एस टी पी में डाल देते थे। सो नाउ कैन आई से कंसीडर what you had box product of u plus w, u cross v cross w। चलो हाउ डू वी कैलकुलेट एस टी पी, डिटर्मिनेंट, चलो एंट्री करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट वेक्टर। सो व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर हियर, ये आपका पहला वेक्टर था, ये आपका दूसरा वेक्टर और ये आपका तीसरा वेक्टर, आर यू गेटिंग इट। सो लेट्स पुट द वैल्यू, सो इज नॉट, यहाँ पे आएगा 1 -1 0, नेक्स्ट सेकेंड में क्या आएगा -2 2 6 बराबर, और थर्ड में क्या आएगा -1 3 3। सो लेट्स कैलकुलेट, व्हाट आई गेट 1 ब्रैकेट 3 2 6 6 3 18 माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 -6, यहाँ पे आ जाएगा +6 और लास्ट टर्म तो 0 ही है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये गया, आंसर इज -12। समझा, मतलब इट इज़ नथिंग बट इंडिविजुअल वेक्टर निकाल के अपने को एस टी पी में डालना था, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ यहाँ पे बोला है लेट ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप, बी बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 माइनस एक्स के कैप, एंड सी बार इज इक्वल टू वाई जे कैप प्लस सॉरी वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई के कैप, ओके। are coplanar, then oh sorry they are not coplanar, they say these are the three vectors, then show that box a bar b bar and c bar is independent of x and y, ठीक है। अब शायद से आपको कंफ्यूज होगा कि ये क्या है, रिक्वायर्ड क्या है तुम्हारा, बॉक्स ए बी सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ओके। अब मुझे तो ये चीज़ नहीं समझा था, बट इतना तो क्लियर था कि मुझे बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, किसका बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, ए बार बी बार सी बार, सब में ए बार बी बार सी बार रेडी है, तो एक काम करते हैं सीधा उठा के उसमें डाल देते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे क्या आएगा सोल्यूशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स ए बार बी बार सी बार। हाउ डू वी कैलकुलेट बॉक्स प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट, चलो फर्स्ट रो में कौन सा, फर्स्ट वेक्टर, तो व्हाट इज ए बार 1 0 -1, प्लीज़ ध्यान रखना ये 0 का, अगर आई जे के में से कुछ मिसिंग है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, इज नॉट, इट इज एक्स 1 1 माइनस एक्स, और फाइनली वाई एक्स 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो अब डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, व्हाट आई गेट 1 ब्रैकेट इज नॉट, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ओके। एक काम करते हैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस ऑफ इज नॉट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स आएगा, फर्स्ट टर्म रेडी, -0 वो तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, बराबर प्लस ऑफ -1 ब्रैकेट में इज़ नॉट एक्स इंटू एट एक्स स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको ओपन करो तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 गया, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इफ़ यू सी एक्स स्क्वायर गया, इफ़ यू सी एक्स गया, इफ़ यू सी वाई गया, तो बचा क्या 1। तो कैन आई से सिंस बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज़ 1, और ये जो आंसर आया उसमें एक्स वाई जेड है क्या, सो सिंस नो एक्स एंड वाई टर्म देयरफॉर बॉक्स ए बार बी बार सी बार इज इंडिपेंडेंट
ऑफ एक्स एंड वाई। समझा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई का मतलब आपका जो बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर है उसमें आपका एक्स एंड वाई नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। ओके, दिस आर ऑल स्मॉल एंड स्वीट क्वेश्चन, दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, और ये एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है, सो लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन negative numbers if the vectors ai cap plus aj cap plus ck cap I cap plus k cap and ci cap plus cj cap plus bk cap lies in the same plane, then show that C is geometrical mean of A and B. ठीक है, सो एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट विद रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है? C इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A एंड B। नाउ जिन्होंने APGP अच्छे से किया रहेगा सीक्वेंस में, तो ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है आपका ACB इन GP, बराबर, मतलब वो सेंटर में आ जाएगा, और GP बोला तो C² इज इक्वल टू AB। ओके, दैट इज, कैन आई से C इज इक्वल टू रूट ऑफ AB। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, सो विद दिस ये अपना थॉट आ गया, रिक्वायर्ड रेडी, बराबर। बट जरा गिवन भी देख लेते हैं क्या बोला है। ABC आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। 3 वेक्टर दिए, लाइज इन द सेम प्लेन, और लाइज इन द सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? को प्लेनर। और जैसा बोला को प्लेनर, काम खत्म। हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट्स नेम द वेक्टर्स। लेट्स से p bar is equal to ai cap plus aj cap plus ck cap. Okay, q bar is equal to I cap plus k cap, and r bar is equal to ci cap plus cj cap plus bk cap. चलो ठीक है, तीनों वेक्टर रेडी हो गए। अब हम क्या बोलेंगे? सिंस p bar q bar and r bar आर को प्लेनर वेक्टर्स, और जैसा बोला को प्लेनर वेक्टर्स, हम लोग क्या करेंगे? उनका बॉक्स प्रोडक्ट को क्या लेंगे? 0। सो p bar q bar r bar इज इक्वल टू 0। हाउ डू वी कैलकुलेट STP? ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। चलो एंट्री करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p bar? AAC, नेक्स्ट इज 101, नेक्स्ट इज CCB। चलो अब इसको ओपन करते हैं। व्हाट आई गेट? A ब्रैकेट इज नॉट 0 माइनस C माइनस A ब्रैकेट B माइनस C प्लस C ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा C माइनस 0 इज इक्वल टू 0। चलो लेट्स ओपन द ब्रैकेट। व्हाट आई गेट? माइनस AC, यहाँ पे माइनस AB, यहाँ पे प्लस AC, यहाँ पे आएगा प्लस C² इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकेंड है, यहाँ पे हमने किधर साइन का गड़बड़ किया क्या? AAC देन B माइनस C बराबर है माइनस AB प्लस AC एंड CCB। ठीक है, तो यहाँ पे आपका AC कट हो गया। अरे हाँ, हो गया, सॉरी। ओके, सो व्हाट आई गेट हियर? C², इफ आई टेक AB ऑन द अदर साइड, व्हाट आई गेट? C² इक्वल टू AB। सो व्हाट इज C इज इक्वल टू रूट AB, और यही तो होता है। कैन आई से C इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A एंड B। अब यही सब MCQ में कैसा होगा? तो ऑप्शन में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, समथिंग लाइक दैट। समझा? ठीक है, तो ये टाइप का सम आएगा। सो एज आई सेड इन दिस टाइप दैट इज STP में आपको रिक्वायर्ड को ज़्यादा देखने का ज़रूरत ही नहीं है, आप खाली कीवर्ड पकड़ो। और कीवर्ड क्या होगा? कोप्लेनर, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, और उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर तैयार। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें भी देखो बहुत स्मार्टली उन्होंने क्या पूछा है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इफ द वेक्टर्स I cap minus k cap, comma 2I cap plus j cap minus 3k cap and 4I cap plus 2j cap plus xk cap do not form tetrahedron in space
देन फाइंड x. ओके, चलो बहुत स्मार्टली लोग ने क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया अपने को. ओके, उन्होंने बोला है फाइंड x. ओके, रिक्वायर्ड इज x निकालना है अपने को. वन अननोन वन कंडीशन, तो मेरे पास एक कंडीशन होना चाहिए. सब में क्या बोला है, डू नॉट फॉर्म टेट्राहेड्रॉन. अब जरा एक चीज़ समझो, आपका टेट्राहेड्रॉन कब नहीं बनेगा. तो टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम इफ़ यू कैन रिकॉल वाज समथिंग लाइक दिस. याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, ये आपका ए बार, ये आपका बी बार, ये आपका सी बार. नाउ ये नहीं बन रहा है. ओके, नाउ जस्ट टेल मी, ये टेट्राहेड्रॉन कब नहीं बनेगा? जब ए बार बी बार तो एक प्लेन में है बराबर, और सी बार उसके ऊपर है. अब ये सी बार को अगर मैं ए बार बी बार के ही प्लेन में डाल दूँ, ओके, ये आपका ए बार, ये आपका बी बार और ये आपका सी बार, तो फिर आप टेट्राहेड्रॉन बना सकते नहीं है, बिकॉज टेट्राहेड्रॉन रिक्वायर्स हाइट, और हाइट दिखाने के लिए मुझे थर्ड डायमेंशन का जरूरत पड़ेगा. सो कैन आई से इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोला है, डू नॉट फॉर्म टेट्राहेड्रॉन इम्प्लाइज, कैन आई से द वेक्टर्स आर कोप्लेनर. मतलब वापिस बात वही आ गया अपना. ओके, डू नॉट फॉर्म टेट्रा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज वेक्टर्स आर कोप्लेनर. बराबर. ओके, ये आपको दिमाग में रखने का है. डू नॉट फॉर्म टेट्राहेड्रॉन में. फाइन. सो इन द सोल्यूशन लेट्स स्टार्ट नाउ. फटाफट सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों वेक्टर को नाम दे देते हैं. सो ए बार इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप माइनस के कैप. बी बार इज इक्वल टू व्हाट, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप. एंड सी बार इज इक्वल टू व्हाट, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप. ओके, तो कैन आई से सिंस ए बार बी बार एंड सी बार डू नॉट फॉर्म क्या, टेट्राहेड्रॉन. ओके, तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स. प्लीज़ ध्यान रखना वेक्टर्स का. ठीक है, तो ये आपका सम का मेन स्टेप है. बस खत्म. जैसा बोला कोप्लेनर वेक्टर्स, कैन आई से बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट बॉक्स प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. चलो जरा एंट्री बताओ क्या आएगा. इज नॉट, इट वुड बी 1 0 माइनस 1, नेक्स्ट इज 2 1 माइनस 3, नेक्स्ट इज 4 2 x. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. चलो ओपन करो, क्या आएगा, 1 इंटू एक्स, 3 2 6, लेकिन बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. माइनस 0 प्लस ऑफ माइनस 1 ब्रैकेट में, 2 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So what you get here, x plus 6 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 6. And you get the result. समझा क्या यहाँ पे? Okay. So here we come to an end of typical sums based on STP. Okay. As you see, this particular set of sums are very simple. Majority of them were based on coplanar vectors. And I repeat again, उसमें भी दो twist है, coplanar vectors and coplanar points. अगर वेक्टर हुआ तो डायरेक्ट बॉक्स प्रोडक्ट, और अगर पॉइंट्स हुआ तो आपको क्या करना है, पहले उसके 3 वेक्टर बनाने हैं और फिर उसका बॉक्स प्रोडक्ट लेना है. ठीक है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो.